Good morning, kids. I hope you all are doing great at home. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 6. Our body, a living machine. How is it a living machine? We will talk about that. So, they are saying a car, a grinder, a computer. All are machines. We all know they work on electricity or they work on petrol. So, they are all machines. Do you know that human body too is a machine? दे आर सेइंग यू नो कि ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक मशीन है. इट इज़ कॉल्ड अ लिविंग मशीन. हाउ? बिकॉज इट्स अ लिविंग मशीन. इट कैन सी, हियर, स्मेल, taste and feel. We can see, hear, feel and taste na. In the same way it can also move, grow, breathe and reproduce. We all move, grow, we also breathe and we also reproduce. No machine can do all this. कोई भी मशीन जो है ह्यूमन बॉडी के अलावा कैन नॉट डू दीज थिंग्स. दे कैन नॉट see, hear or smell. They in fact they cannot breathe, they cannot move or they cannot grow. So how our body is a wonderful machine because it perform many functions. कौन कौन से functions perform करती है ये? Such as eating, running, walking, crying, writing, singing. We can do all these things and it has different parts. We are having different parts like hands, legs, mouth to do these activities. Can we do running without? Can we run without legs? No, na. And can we sing without hands, or can we carry something without hands? No, na. So different parts like hands, leg and mouth use to do these activities. हमारे hands, legs और mouth क्या है, use होते हैं so that we can do different kinds of activities. And in this chapter we will learn about the different parts. In this chapter we will talk about the different parts that work together. वो क्या करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं, वर्क करते हैं to perform similar functions to keep us alive. वो क्या करते हैं, ऐसे functions perform करते हैं so that we can stay alive. So the first is we are going to talk about cell. Our body is made up of millions of tiny parts, millions of tiny parts, and they are called cell. Cell is the smallest unit of our body. Cell क्या is the smallest functional unit of our body. They are also called building blocks of the body. और उन्हें क्या बोलते हैं cells को? They are also known as building blocks of our body. And our hands, हमारे जो हाथ हैं, legs हैं, ears हैं, nails हैं, they all are of made up of these cells. वो किससे बने हुए हैं? They all are made up of these cells. वो सब क्या है, इन्हीं cells से बने हुए हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन द सेल ऑफ सेम काइंड. जब सेल जो है सेम काइंड के हैं, लेट से आपके पास बहुत सारे बैलून्स हैं, वो जो है डिफरेंट डिफरेंट है, कोई येलो है, कोई रेड है, कोई पर्पल है, तो व्हाट यू विल डू, you will separate out the yellow balloons, you will make the group of yellow balloons separately, then you will go for the purple balloon and then you will go for the red or blue balloon. तो वो क्या है, when these cells of the same kind join together, जब in the same way जब ये ऐसे cells जो हैं same kind के, जैसे blue balloon है हमने एक side पे grouping करके रख दी, वैसे ही जब cell जो हैं same kind के होते हैं, एक जैसे होते हैं, together they join together, वो जुड़ जाते हैं, they called as tissue और they make as a tissue. जब काफ़ी सारे cells हैं same kind के, they join together to make a tissue. और जब ये tissues जो हैं दे ज्वाइन टुगेदर, पहले तो क्या है, सेल जो है स्मॉल ग्रुप के वो एक साथ ज्वाइन होंगे, दे फॉर्म द टिश्यू. और जब जो टिश्यूज़ जो हैं वो ज्वाइन होंगे सेम काइंड के टू मेक अ ऑर्गन. टिश्यूज़ ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन. एंड मैनी ऑर्गन्स, काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो हैं व्हेन दे वर्क टुगेदर टू दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर. जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है दे वर्क टुगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर आवर बॉडी टू प्ले. दे ऑर्गन सिस्टम हेल्प आवर बॉडी टू प्ले, लर्न, ग्रो एंड डू मैनी अदर थिंग्स. वो क्या हेल्प करते हैं, सो दैट ह्यूमन बॉडी कैन डू so many things. So I am repeating again, cell is the smallest unit in our body. जो हमारी बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड सेल. एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट, बिल्कुल छोटी, सेल इज द स्मॉलेस्ट
functional unit of our body. They are also called as building blocks of our body. जो cells हैं they are also known as building blocks of the body. जो हमारे hand हैं, legs हैं, nails हैं, ears हैं, they all are made up of cells. When the cells of same kind, जब cells जो हैं वो same kind के एक ही तरह के हैं, join हो जाते हैं एक साथ, they form a tissue. तो वो क्या form करते हैं? Tissue form करते हैं. और जब tissue जो हैं same kind के tissues join together to make an organ, जब tissues जो हैं join हो जाते हैं एक साथ, they make an organ. Many organs together form an organ system. जो काफ़ी सारे organs हैं एक साथ वो क्या form करते हैं? They form an organ system. एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर. बहुत जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है दे वर्क टुगेदर. वो क्यों वर्क करते हैं? सो दैट दे मेक इट पॉसिबल फॉर आवर बॉडी टू प्ले, लर्न एंड डू मैनी मोर थिंग्स. वो जो ऑर्गन सिस्टम है जब वो एक साथ वर्क करता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को सो दैट वी कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स. So before we move further, tell me what are sense organs? Sense organs कौन से होते हैं? Some of the organs, ऐसे organs जो they tell us about the world around us. Some of the our organs they tell us about the world around us. कुछ ऐसे organs जो हमें हमारे environment के बारे में बताते हैं कि क्या changes हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे. They are called sense organs. उन्हें क्या बोलते हैं हम? सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं. एंड वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन. कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. these सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेजेस टू आवर ब्रेन टू टेक प्रॉपर एक्शन. दैट जो हमारा ब्रेन है वो फटाफट प्रॉपर एक्शन ले सके. सो व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट. ओके, टेल मी व्हाट आवर आईज डू. आवर आईज हेल्प अस टू सी. ठीक है. व्हेन अ व्हीकल इज सीन ऑन द रोड, जब हमें कोई व्हीकल जो है वो रोड पे दिख रहा है, अ मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन थ्रू आवर आइज. जो हमारी जो है आइज के थ्रू जो है एक मैसेज जो है वो ब्रेन को चला जाता है. एंड वी मूव असाइड, हम जो है साइड हो जाते हैं टू अवॉइड एन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए. इन द सेम वे आर ईयर हेल्प अस टू हियर. हमारे ईयर्स जो हैं वो हमें क्या हेल्प करते हैं? दे हेल्प अस टू हियर. When a loud irritated sound is heard, whenever we heard any kind of sound, a message is sent to the brain through the ears. तो एक मैसेज जो है वो ब्रेन को चला जाता है थ्रू द ईयर्स. एंड देन वी कवर आवर ईयर्स यूजिंग आवर हैंड्स. तो हम क्या कर लेते हैं? जब भी हमें कोई शोर सुनाई देता है हम अपने हैंड से अपने ईयर्स को कवर कर लेते हैं ना. क्यों? क्योंकि जो ईयर जो है वो फटाफट जो है मैसेज किसको पास कर देता है? ब्रेन को कर देता है. इन द सेम वे आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल. वेन एवर अ बैड स्मेल इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, जब भी कोई बैड स्मेल हमारे एयर में प्रेजेंट होती है तो क्या होता है? आवर नोज लेट अस नो अबाउट इट. हमें कैसे पता चलता है? वो हमारी नोज की हेल्प से. एंड वट अबाउट द स्किन? हमारी स्किन क्या करती है? इट हेल्प अस टू फील. वेन एवर वी टच एन हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्या होता है? हम अपना हाथ इमिडिएटली रिमूव कर देते हैं ना. क्यों? क्योंकि हमारी जो बिकॉज द हीट हर्ट्स आवर स्किन. जो हीट है वो क्या करती है? हमारी स्किन को क्या करती है? हर्ट करती है. दैट्स वाई वी रिमूव द हैंड. एंड आवर टंग, हमारी टंग क्या करती है? आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट. वेन एवर समवन ईट्स आइसक्रीम, जब भी कोई जो है आइसक्रीम ईट करता है, इट टेस्ट नाइस एंड कोल्ड ना. वो हमें क्या लगती है? ठंडी लगती है और अच्छी लगती है. दैट्स वाई दैट्स हाउ आवर टंग टेल अस द स्वीटनेस ऑफ एनी थिंग. और वी कैन से आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट. एंड एज आई वॉज टेलिंग यू, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं थ्रू द नर्व्स. एंड दीज ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेंड कर देते हैं मैसेजेस को टू द ब्रेन. एंड द ब्रेन जो है वो क्या करता है? मेक्स अस, हमें जो है द ब्रेन मेक्स अस अंडरस्टैंड पिक्चर, साउंड एंड स्मेल एंड टेस्ट एंड feeling. Next is organ system. While our sense organ help us to know around surroundings, हमारे sense organs क्या करते हैं? हमें बताते हैं surroundings में क्या हो रहा है. The organ system inside our body carried out different functions. जो organ system है हमारी body में that carry out different functions, वो जो है different functions जो है वो perform
करता है। एंड दीज ऑर्गन सिस्टम आर लाइक द मेंबर ऑफ अ टीम। जो ऑर्गन सिस्टम है वो किसकी तरह, मेंबर ऑफ अ टीम की तरह है। ईच वन हैज़ इट्स ओन फंक्शंस। इनके क्या है, सबके क्या है, अलग अलग फंक्शंस हैं। ओके, सो दे आर सेइंग द बॉडी फंक्शंस प्रॉपर वर्क प्रॉपरली। जो बॉडी जो है हमारी जो है वर्क प्रॉपरली कब करती है, जब जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, सच एज हार्ट, किडनी, स्टमक, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं। वाई, बिकॉज दे आर फाउंड इनसाइड आवर बॉडी। कैन वी सी आवर ब्रेन? No, no, we cannot see our stomach, heart or kidney. So they are internal organs and they are found inside the body. Human body is having 8 organ system. The first one is respiratory system, digestive system, and there are other more. Today we will talk about the respiratory system. The respire means, respire का मतलब क्या होता है, to breathe in oxygen. रेस्पायर जो है ये वर्ड, इसका मतलब क्या है, टू ब्रीद इन ऑक्सीजन, ब्रीद इन करना ऑक्सीजन को, और वी कैन से टेक इन करना ऑक्सीजन, एंड यूज इट, और उसे यूज करना, टू इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करना, गिव आउट करना। ओके, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। टू रिस्पायर मीन्स टू ब्रीद इन ऑक्सीजन and to breathe out carbon dioxide. Respire means to breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Respiratory system consists of the nose, windpipe and lungs. Respiratory system किससे मिलके बना है, nose से, windpipe से and lungs से. We take in air through our nose. जो हम air जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, through our नोज। द हेयर इन द नोज, जो ये नोज में हमारे हेयर प्रेजेंट होते हैं ना, वो किस लिए, उनका फंक्शन क्या है, दे प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। वो क्या प्रिवेंट करते हैं, सो जो डस्ट और जर्म्स जो प्रेजेंट हैं एयर में, जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो उन्हें बचा सकें एंटर करने से हमारी बॉडी में। दे हेल्प अस टू प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। The air then goes to our lungs through the windpipe. जो एयर हमने इनहेल की है थ्रू द नोज, वो कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है थ्रू द विंड पाइप के थ्रू। द एयर दैट वी ब्रीद इन हैज़ अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। जो हम गैस जो है ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। द लंग्स टेक इट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो लंग्स जो है वो टेक इन कर लेते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर एंड सप्लाई इट टू द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वो कहाँ सप्लाई कर देते हैं, उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स है हमारी बॉडी में, वहाँ तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस ऑक्सीजन बर्न अप द फूड वी ईट एंड गिव्स अस एनर्जी। जो ये ऑक्सीजन है हेल्प करती है टू ब्रेक डाउन द फूड, जो हमारा हमने फूड जो ईट किया उसको ब्रेक डाउन कर ले, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करने में, एंड टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फॉर द बॉडी। और जो एनर्जी हमें फूड से मिल रही है वो हमें प्रोवाइड करती है। द एयर वी ब्रीद आउट इज़ इम्प्योर एंड हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर जो हमने इनहेल की है उसके बाद हम एक्सेल भी करते हैं, मतलब ब्रीद आउट भी करते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग क्या करती है, प्यूरीफायर आवर ब्लड। ब्रीदिंग क्या करती है, प्यूरीफाई करती है, किसको प्यूरीफाई करती है, हमारे ब्लड को। सो विद द हेल्प ऑफ नोज वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन जो है वो विंड पाइप के थ्रू जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, लंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। और लंग्स में जब ये ट्रांसफ़र हो जाती है तो वहाँ से वो क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है हमारे, उनको आगे पास ऑन हो जाती है। एंड जो आफ्टर पासिंग ऑन टू द डिफरेंट पार्ट्स, जो हमारी ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो भी क्या है, लंग्स के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू जो है हमारी नोज से क्या हो जाती है, ब्रीद आउट हो जाती है। और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है उसका फंक्शन क्या है, दैट हेल्प अस टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड सो दैट वी कैन गेट द एनर्जी फॉर आवर बॉडी। और जो ऑक्सीजन है या फिर जो ब्रीदिंग है वो क्या हेल्प करती है, दे हेल्प इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर ब्लड। वो हमारे ब्लड को क्या करती है, प्यूरिफाई करती है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन,
टू रिस्पायर मीन्स टू ब्रीद इन ऑक्सीजन। रिस्पायर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को ब्रीद इन करना। और वो ऑक्सीजन किस लिए यूज होती है? टू ब्रेक डाउन द फूड टू गेट एनर्जी फॉर द बॉडी। वो किस लिए यूज होती है? सो दैट इट कैन ब्रेक डाउन द फूड इन टू स्मॉलर पीसेज एंड द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड for our body. And but after inhaling we also exhale a gas that is called carbon dioxide. Then organs that helps, ऐसे ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं हमारी ब्रीदिंग में वो कौन कौन से हैं? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। कौन कौन से हैं वो? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। जो एयर जो है पासिस थ्रू द विंड पाइप, जो एयर वी ब्रीद इन थ्रू द नोस्ट्रिल ऑफ आर नोज। जो ये नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स कौन से होते हैं? ये जो दो होल हैं हमारी नोज में, दे आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। और जो हेयर प्रेजेंट है हमारी नोज में, दे प्रिवेंट इन द एंटरिंग ऑफ डस्ट एंड जर्म्स। वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं ताकि डस्ट एंड जर्म्स जो है हमारी बॉडी में एंटर ना हो सके। दे आर काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन, दे आर काइंड ऑफ फिल्टर्स। जो एयर जो है पास हो गई है, एयर जो है नोस्ट्रिल्स, नोज से जो हमने इनहेल किया एयर, वो थ्रू विंड पाइप जो है वो कहाँ पास हो जाएगी? लंग्स में पास हो जाएगी। इन द लंग्स ब्लड क्या करेगा? द टेक इन ऑक्सीजन एंड पास आउट द कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। वो क्या करेगा? ब्लड जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले लेगा। The blood in the lungs take in oxygen and then it passes through the different parts of the body. वो कहाँ पास कर देगा? different parts जो हमारी body के वहाँ पास कर देगा। and the air we breathe out, जो भी air हमने breathe out की है, that is carbon dioxide, वो भी कहाँ चली जाती है? वापस lungs में चली जाती है। from the lungs that pass आउट थ्रू द नोज। जो लंग्स है हमारे, लंग्स से क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है थ्रू द विंड पाइप पास आउट हो जाती है। कहाँ से? हमारे नोज से जो है वो पास आउट हो जाती है। ब्रीथ करेक्टली, एंड दे आर सेइंग वी शुड ब्रीथ करेक्टली, वी शुड ब्रीद इन फ्रेश एयर। ऑब्वियसली वी शुड ब्रीद इन फ्रेश एयर। कीप द विंडोज ऑफ रूम्स ओपन, ताकि जो है हमें जो है फ्रेश एयर जो है वो मिलती रहे। ब्रीथ थ्रू आर नोज नॉट थ्रू आर माउथ। हमें ब्रीदिंग जो है हमेशा नोज से करनी चाहिए, माउथ से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे नोज में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? दे आर काइंड ऑफ फिल्टर्स। वो हमारी बॉडी में जो जर्म्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं थ्रू द नोज या थ्रू द एयर इनहेल हो रहे हैं, वो उन्हें अंदर पास नहीं होने देगा। बट जब हम माउथ से लेते हैं तो जो भी जर्म्स या डस्ट प्रेजेंट होती है हम एयर में, वो क्या हो जाएगी? हमारी बॉडी में चली जाएगी। नोट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। स्लीपिंग के टाइम पे हमें अपना फेस जो है वो कवर नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, that is a living machine. What you have to do, you have to read your chapter up to here, and after that you have to do this checkpoint, question number 1 and question number 2. Only 2 will be there. You have to after reading that chapter up to respiratory system, you have to try this checkpoint 1 and checkpoint 2.